recording. Okay, so good afternoon, students. ये हम लोग का जो है, this is now the 22nd lecture, and these are going to be the session outcomes. We will be studying about the power factor improvement methods for three-phase full converter drives. क्योंकि हम लोग को पता 3 क्या actually single and 3 both single and three-phase converter drives. Why single phase? Why power factor improvement techniques? Because you know दो चीजें हैं जो you have studied. अब आपने single phase full converter, single phase semi converter दोनों पढ़ लिया है, ठीक है? आपके जो assignments है वो मैं अभी संजय आपका एक assignment I have not been able to check, वो मैं कर लूंगी जल्दी से, because as I said I was busy yesterday पूरा दिन. So the thing is the problem with आपको पता है we have been discussing in the previous classes that the rectifiers we or yeah, even in inverters we delay the triggering and we have a variable output by delaying. मतलब by controlling the delay angle we get a variable DC output in the for the load circuit. Okay? जिसकी वजह से क्या हो जाता है, when you delay the voltage, मतलब आपने you fire the SCR at let us say angle alpha, so your current also starts flowing at omega t is equal to alpha. So there becomes a phase difference between voltage and current. Voltage तो अपनी जगह पे है जो AC voltage है ना? जैसे VAB है तो V 3 phase में तो VAB will start from omega t is equal to 0, but current will start at omega t is equal to alpha. When the motor speed is low, alpha is large, meaning when you want to control the motor during the low speed regions, alpha is large. And in this case, the phase difference between the voltage and the current source side voltage and current, क्योंकि power factor DC side में तो होगा ही नहीं ना, DC side में ripple होगा. So we are talking about the AC side, AC source side. So the power factor becomes very poor because the current starts lagging behind the voltage by a large angle. This is for low speed. So if I ask you that the power factor of the drive will become, मतलब drive is a load ना, जैसे अपना ट्यूबलाइट का पावर फैक्टर होता है वैसे ही आपके कन्वर्टर का भी पावर फैक्टर है. कन्वर्टर भी एक डिवाइस है which is connected to the utility power grid, और पावर फैक्टर का जो है सबसे मेजर इम्पैक्ट यूटिलिटी पे ही पड़ता है, बिकॉज जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए आपको पता होगा कि इंडस्ट्री वगैरह में ये पावर क्वालिटी इश्यूज होते हैं. इंडस्ट्री वगैरह में दे पुट अ पेनल्टी ऑन यू इफ द पावर फैक्टर, बिग फैक्ट्रीज वगैरह, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को तो नोबडी सेज एनीथिंग टू द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, ओके, बट फॉर लार्ज लोड्स there is a penalty if the power factor is lower than a certain limit. So that is why all the industries have rectifier or control panels, actually capacitor panels, installed in their control center, in their dispatch place, so that if the power factor becomes low, then the capacitors can be turned on automatic switched capacitors are there for power factor improvement purposes. Okay, so this you know already. Otherwise if the power factor is low, तो प्रॉब्लम कंज्यूमर को भी है और सप्लायर को भी है. सप्लायर को क्या प्रॉब्लम है बताइए? व्हाई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सोच के बताइए कि व्हाई द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पुट्स अ पेनल्टी ऑन द एचटी कंज्यूमर्स, जो हाई वोल्टेज कंज्यूमर्स हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह. व्हाई डू दे पुट अ पेनल्टी इफ द पावर फैक्टर इज लो? उनको क्या परेशानी? इंडस्ट्रीज में वो जैसे आर्क वेल्डिंग और मतलब ऐसी मशीन्स, इलेक्ट्रिक मशीन्स का यूज करते हैं जिससे हार्मोनिक्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो हार्मोनिक्स में अफेक्ट करते हैं अपने पावर्स को. तो जो कंज्यूमर अदर कंज्यूमर रहते हैं, लो एंड जो रहते हैं कंज्यूमर, तो उनके पावर पे मतलब क्वालिटी पे मैम उस पे फर्क आ जाता है. बिल्कुल 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 ठीक. दीक्षा आप भी कुछ बोल रहे थे?
मैम रिएक्टिव पावर का भी होता है मैम उसमें। हाँ, अगर पावर फैक्टर लो रहा ना तो मतलब रिएक्टिव पावर रही। जैसे कि कहीं पे भी सोर्स वोल्टेज इज V फिक्स्ड, रेफरेंस वोल्टेज V इज ऑलवेज एट ए, मतलब वो तो रेफरेंस वोल्टेज है। नाउ इफ योर करंट इज एट ए लैगिंग एंगल, इसका मतलब वो VI, मतलब अगर अल्फा लार्ज है तो दैट मीन्स आपका VI साइन फाई रिएक्टिव पावर वो लार्ज हो जाएगा, है ना। अगर अल्फा 0 है तो कोई रिएक्टिव पावर नहीं है। जब अल्फा अल्फा मतलब फायरिंग एंगल भी या फेज एंगल, फाई बोल दीजिए, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। तो इफ द एंगल इज लार्ज then the power factor is poor and there is a reactive power which is, मतलब converter starts behaving, converter या कोई सा भी लोड starts behaving as a sink of reactive power, मतलब as if वो सोर्स से VI sin phi खींच रहा है ना। मतलब फॉर इट्स ऑपरेशन, जो जिस भी कंडीशन में वो ऑपरेट कर रहा है उसमें द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज लार्ज, देयरफॉर VI sin phi, phi is large। यहाँ पे phi is equal to alpha है कन्वर्टर के केस में। जो पावर फैक्टर एंगल होता है V और I के बीच का, यहाँ पे तो वो अल्फा है ना, क्योंकि यू आर डिलेइंग द फ्लो ऑफ करंट। तो जितनी देर के बाद अगर आप फेजर बनाएंगे तो V और I के बीच का एंगल अल्फा हो जाएगा, तो cos phi is equal to cos alpha एक्चुअली। तो VI sin phi कब बढ़ेगा, जब phi लार्ज है। अगर phi 0 है या phi 10 डिग्री है या phi कम है तो VI sin phi कम होगा। So that is why we say that if the power factor is poor, then the load is drawing a reactive power. It is taking a reactive power from the source. The reactive power has to be provided by the utility, जो सोर्स जिससे हम कनेक्टेड है। जब हम ट्यूबलाइट कनेक्ट कर रहे हैं और ट्यूबलाइट में जो है वो ट्यूबलाइट मान लो लो पावर फैक्टर का है, तो दैट मीन्स वी आर ऑल टेकिंग फ्रॉम द एमपीवी, वी आर टेकिंग, जो हमारा लोड है इट इज टेकिंग अ करंट विच इज एट ए लोअर पावर फैक्टर, विच इज एट ए हायर एंगल डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज, वोल्टेज से बहुत लैगिंग है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि रिएक्टिव पावर लोड, मतलब ट्यूबलाइट इज बिहेविंग, वैसे तो 60 वॉट का होता है, 40 वॉट 45 वॉट 60 वॉट, तो 60 वॉट तो उसकी रियल पावर होगी VI cos phi, लेकिन वो VI sin phi भी ले रहा है वहां से बहुत सारा, ठीक है। और VI sin phi कहाँ से आएगा, तो एमपीईबी में जो इनके जो सबस्टेशन वगैरह में जो कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं वही बेचारे दे पाते हैं, क्योंकि जो पावर स्टेशन में जो जनरेटर है वो सिर्फ एक्टिव पावर सप्लाई करता है, रिएक्टिव पावर बहुत कम देता है, बहुत ही कम। और ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर से रिएक्टिव पावर फ्लो होके नहीं आ पाती है। बेसिकली व्हाट इज रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर इज ए काइंड ऑफ इमेजिनरी क्वांटिटी, because the voltage and current are not in the same phase, they are not in the same phase, तो इस वजह से एक रिएक्टिव पावर नाम की चीज आ गई है, उसका कोई यूज है नहीं, it is not being used anywhere, but because we are using VI cos phi for doing work, जैसे आपकी मोटर चल रही है कन्वर्टर से लगी हुई, कोई आउटपुट निकल रहा है तो VI cos phi तो यूज हो गया। नाउ देयर इज अनदर कंपोनेंट ऑफ I, तो उसको कहाँ छोड़ दोगे, यू हैव टू कंसिडर, यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट द VI sin phi also। तो हमको इसी वजह से जो है वो VI sin phi के बारे में भी सोचना पड़ता है कि वो कहाँ से आएगा। So for running that load, the VI sin phi has also to be need also to be supplied by the पावर कंपनी, और वो पावर कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम आती है रिएक्टिव पावर देने की। और फॉर एग्जांपल इफ द रिएक्टिव पावर इज नॉट अवेलेबल, मींस अगर वो आपको VI sin phi प्रोवाइड नहीं करा पाता है, इन दैट केस उस कंज्यूमर का वोल्टेज ड्रॉप होता है। और अगर कंज्यूमर का वोल्टेज ड्रॉप होगा तो सिर्फ अकेले कंज्यूमर का तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, है ना, वोल्टेज सभी का ड्रॉप होगा। तो इट इज लाइक दिस इज द वोल्टेज फेजर, ओके, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज तो हमेशा यही होता है। नाउ दिस इज द करंट फेजर एंड ये आपका एंगल फाई है, बिकॉज ये वाला चैप्टर टोटली पावर फैक्टर के ऊपर है। नाउ दिस विल हैव वन कंपोनेंट हियर, दिस इज करंट, so this will have one component here which will be in phase with voltage and we will call it I cos phi, ठीक है। Now V and I cos phi are in the same phase, so they
are able to interact, V and I cos phi interact to produce a power P, active power P, which is equal to VI cos phi. ठीक है? This is a good power. You are able to use this. This is useful, usable. This is useful power. Okay? This is useful. But what about अगर आपने इसका ये component लिया तो आपको इसका ये तो cos phi हो गया, तो अब सिमिलरली इसका इधर एक sin phi component भी तो आएगा ना 90 डिग्री पे. अगर ये I VI ये I cos phi है तो ये I sin phi है. Now this I sin phi is at 90 degree to V. V is here, I sin phi is here. So V and I sin phi, because they are not in the same phase, they are not able to provide any active useful power. So we just coin a term. We say that इनका भी तो कुछ करना ही पड़ेगा भाई. V I sin phi इनको क्या बोले हम? So we say that let us call this as Q, which is reactive power. So in this way, Q is born just to account for the component of current which is at 90 degree. Now this is only a troublesome component. This is not a creative component, and this is a fictional component also to some extent, because you cannot, I mean, see this, you cannot make, जैसे इससे तो आप पंखा चलेगा आपका या आपकी मशीन घूमेगी, लोड कुछ, मतलब this is active. This is not active, so we call it reactive. तो इसका एक तरह से क्या होता है, impact तो रहता है इसका. Reactive power is always very closely linked to the voltage in the system. Reactive power अगर ज्यादा हो गया तो voltage बढ़ जाता है, otherwise वो घट जाता है. Active power is directly linked to frequency F of the system. अगर active power कम हो जाती है लोड से तो फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाती है, और अगर एक्टिव पावर बढ़ जाती है, मतलब लोड कम हो जाता है और पावर बढ़ जाती है, तो आपकी जो सिंक्रोनस मशीन्स है वो तेज चलने लगती हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. हमें तो दोनों ही नहीं चाहिए. वी वांट दैट द पावर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू लोड, और उसी के हिसाब से जितना लोड होता है मशीनें उतनी ही करंट खींचती हैं सोर्स से. ऑलवेज लोड जो भी है वो अपना जैसे खींच लेता है खुद अपना, ना उसमें ज्यादा लेगा वो करंट, ना कम लेगा, वो खींच लेगा अपने काम के लिए करंट. अब आप देखिए कि यहाँ पे आपका एक्टिव पावर इज VI cos phi. इफ द वैल्यू ऑफ phi इज लार्ज, ओके, जैसे जैसे phi बढ़ेगा तो क्या होगा, cos phi कम होता जाएगा. ठीक है. अब आपको पावर चाहिए मान लो 100, आपको P, आपकी लोड की रिक्वायरमेंट फिक्स्ड है, लोड इज फिक्स्ड, इट वांट्स 100 वॉट, लेट अस से, या किलोवाट, कुछ भी 100. अब अगर V into I तो मान लो 100 हो रहा है, लेकिन cos phi जो है वो बहुत कम है, 0.5 है, तो क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पे तो 50 ही आ जाएगा आपका. लेकिन लोड तो खींचेगा ना, लोड, दिस इज लोड विच इज रिक्वायरिंग एक्टिव पावर 100. अब वो तो लोड तो खींचेगा, लेकिन ये वोल्टेज पे लोड का कोई कंट्रोल नहीं है, वोल्टेज रेफरेंस है. ठीक है. फाई पे भी उसका कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज उसका पावर फैक्टर जितना है, आपने जो भी डिले किया है या जो भी है सिस्टम में जितना इंडक्टेंस है उस पर आपका पावर फैक्टर डिपेंड करता है. पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, R/Z. कन्वर्टर में पावर फैक्टर इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपने करंट को कब से स्टार्ट किया. दिस इज योर वोल्टेज, ये आपका वोल्टेज है, एंड यू स्टार्टेड करंट फ्रॉम हियर, दिस इज अल्फा. ठीक है. तो अल्फा इज लार्ज, तो अब आपका वोल्टेज का जीरो यहाँ है और करंट कितने डिग्री पे आ गया, 120 डिग्री पे, तो ये एंगल 120 हो गया. फॉर एग्जांपल 120 में तो खैर पावर ही चेंज हो जाएगा, 120 नहीं, लेट अस से कि अल्फा इज इक्वल टू 70 डिग्री या 80 डिग्री. अगर 90 से ज्यादा हो गया तो पावर का डायरेक्शन अपने को मालूम ही है कि पावर फ्लो का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा. तो इफ अल्फा इज लार्ज, देन व्हाट हैपेंस, अब आपको तो 100 चाहिए ना, कहीं से, कहां से आएगा, V से आएगा क्या, नहीं आएगा, V फिक्स्ड है.
V का फेज भी फिक्स्ड है, V का मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड है। cos फाई भी, क्योंकि आपने फायरिंग एंगल डिसाइड कर लिया तो फिक्स हो गया। और बाकी जो आपके सिस्टम है जहां कन्वर्टर नहीं होता है, वहां जो ये फाई है वो सिस्टम के कंपोनेंट्स पे डिपेंड करके वो भी फिक्स्ड होता है। तो अल्टीमेटली ये 100 आएगा कैसे? कैसे आएगा? ये करंट, system will draw more current when power factor is low, more or larger rather कहना चाहिए, current will be drawn, more current will be drawn from the source. लोड जो है जब लो पावर फैक्टर पे काम करता है तो वो मोर करंट फ्रॉम सोर्स ले लेता है, वो सोर्स से बहुत ज्यादा करंट खींचता है। ठीक है, अब अगर वो ज्यादा करंट खींचेगा तो इसीलिए आपकी पावर कंपनी को, एमपीबी को प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स लो पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन उनके गैजेट्स, उनकी मशीनें कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड, तो क्या होगा, उस मोटर को तो सप्लाई चाहिए ना। तो एवरी इक्विपमेंट, मोटर है, कन्वर्टर के थ्रू मोटर है, जो भी मतलब वॉट एवर लोड्स आर देयर, यहाँ पे कन्वर्टर और मोटर मिलके एक लोड है। So all these loads will take more current from the source to balance their real power requirement. Because V पे कंट्रोल नहीं, cos फाई पे कंट्रोल नहीं, करंट ज्यादा खींचेंगे वो। जब वो करंट ज्यादा खींचेंगे तो आपकी एमपीबी की लाइनें जो है वो ओवरलोडेड हो जाएंगी। वो लाइन मतलब कितनी थी डिसाइड, लाइन डिजाइन्ड थी मान लीजिए 100% कैपेसिटी के लिए। अब पावर फैक्टर की कमी को पूरा करने के लिए आपकी करंट 10% या 20% बढ़ गई, तो जो आपकी लाइंस थी वो 20% ओवरलोडेड हो गई क्योंकि करंट ज्यादा आ गया। उससे आपकी एमपीबी की पावर सप्लाई कैपेबिलिटी कम हो गई, उनको फिर कहीं और का लोड ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज, और ऐसा सभी लोड अगर ऐसा करने लगे तो उनकी दुकान तो पिट गई। So that is why the power company puts a complete restriction on you that your power factor should be low. Otherwise, automatically more current will be drawn. All the lines will be loaded. तो यूटिलिटी को लो पावर फैक्टर, यूटिलिटी मतलब एमपीबी, पावर यूटिलिटी जो आपको सप्लाई करता है। तो जो पावर यूटिलिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या कोई भी प्राइवेट पावर कंपनी, तो उनको ये प्रॉब्लम है पावर फैक्टर लो होने से कि उनकी लाइंस ओवरलोडेड हो जाती हैं और वो कम लोड सप्लाई कर पाते हैं। फिर कहीं और का लोड उनको बंद करना पड़ेगा क्योंकि एक लोड ने ही ज्यादा करंट ले ली, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लोड इज डिसाइडेड बाय करंट एंड करंट इज द मेन फैक्टर। आपके सारे प्रोटेक्शन मोस्टली करंट पे वर्क करते हैं। इफ द करंट देयर इज शॉर्ट सर्किट तो करंट राइज होती है, लोड ज्यादा है तो करंट राइज होती है, करंट ज्यादा होगी तो हीटिंग होती है, हीटिंग होती है तो इक्विपमेंट जल्दी खराब होता है, मेंटेनेंस लगता है। ठीक है, इंसुलेशन खराब होता है, हीटिंग होती है। तो करंट मेन अपने को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज ये सब भी अपन केयर करते हैं, बट नॉर्मली वोल्टेज इज कंट्रोल्ड बाय द यूटिलिटी। नाउ तो आपको ये समझ में आ गया कि व्हेन द पावर, ये सब एक्चुअली अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज हैं पर इसके कॉन्सेप्ट कई बार क्लियर नहीं होते हैं, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन इट अप हियर। तो एक फिर से अगेन वी विल रिपीट कि इफ द पावर फैक्टर इज लो, यहाँ पे तो हम ड्राइव्स के संदर्भ में बात करेंगे, ड्राइव्स के संदर्भ में वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को, उसके कोसाइन को अपन पावर फैक्टर कहते हैं। बट इन जनरल इफ द पावर फैक्टर इज लो, देन for supplying the same power to a load, same power P to a load, you need more current. More current means more heating and less, system की capability कम हो जाती है बिकॉज एक लोड ने ही ज्यादा करंट खींच ली, अब दूसरे को वो क्या देगा। ठीक है, तो दैट इज वाई यूटिलिटी साइड से द कंसिडरेशन फॉर इम्प्रूव, कंसिडरेशन कि भाई कस्टमर जो उसका है, इंडस्ट्री जो है वो हाई पावर फैक्टर पे ऑपरेट करे, मतलब 1 के आसपास, 1 से ज्यादा भी कोई पावर फैक्टर नहीं हो सकता है ना। तो या लीड करेगी करंट तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है। आइडियल ये है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो, जैसा डीसी में होता है, ताकि वोल्टेज इंटू करंट इज पावर, और पावर जरा भी कम ना हो। कोई भी cos फाई, फाई इज इक्वल टू 0, cos 0 इज 1, तो मतलब जितना ये 0 के आसपास होगा फाई, उतना अपने लिए अच्छा है फॉर एवरीबॉडी। यूटिलिटी के लिए क्यों अच्छा है मैंने बता दिया, बिकॉज यूटिलिटी की लाइंस का बर्डन नहीं बढ़ता है, लाइनों की हीटिंग नहीं बढ़ती है, उनके सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं करते हैं,
एंड दे आर एबल टू सप्लाई पावर, जितना उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है सबको दे पाते हैं, अदरवाइज वो एक को देंगे तो दूसरे को नहीं दे पाएंगे, है ना, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी कम हो गई। अब बात आती कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर के लिए भी ये कुछ अच्छा नहीं है, बिकॉज cos फाई अगर आपका cos फाई अगर 0.6 है, पावर फैक्टर लो होगा तो cos फाई कम होगा, cos फाई मान लीजिए 0.6, तो इन दैट केस if cos फाई इज लेस, देन इन दैट केस उसका पावर जो है, अगर उसको 100 वाट मिलना था तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 हो गया, तो उसको 60% ही मिलेगा, और या फिर उसको करंट, मतलब उस करंट पे मशीन इज रेटेड एट आई एम्पियर, फुल रेटेड मशीन पे, फुल रेटेड करंट पे the consumer will get only 60% output or HP if the power factor is 0.6, तो कंज्यूमर को भी नुकसान हुआ, अदरवाइज क्या होगा, द करंट विल इंक्रीज, फिर वही बात है, उसका रिले भी ट्रिप हो सकता है करंट इंक्रीज होने से। और या ये कह लो कि मोटर को आपने आप 140 किलोवाट की मोटर डिजाइन करिए, तब वो आपको 100 देगा, तो मतलब डिरेटिंग हो गई ना, अगर आपको 100 किलोवाट चाहिए तो आप 140 की डिजाइन करिए, तब आपको 100 मिलेगा। तो पावर फैक्टर लो होने के देयर आर लार्ज नंबर ऑफ disadvantages, large number of disadvantages for consumer also, for utility also, and ये सब चीजें रिलेटेड है। जो संजय ने हार्मोनिक्स की, तो ये रिएक्टिव पावर इज अ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द पावर, समझे, वी अपन रिएक्टिव पावर बोलते हैं, रिएक्टिव पावर और पावर फैक्टर बिल्कुल एक ही चीज है एक तरह से, अगर पावर फैक्टर कम होगा तो रिएक्टिव पावर ज्यादा होगी, मतलब रिएक्टिव पावर की नीड ज्यादा होगी, और रिएक्टिव पावर हमें एक्चुअली आइडियली 0 चाहिए, वी डोंट वांट एनी रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर व्हाट विल इट डू, रिएक्टिव पावर व्हाट विल इट डू, रिएक्टिव पावर विल degrade the performance, it will reduce the voltage of at that point, रिएक्टिव पावर के कारण, ठीक है, हीटिंग भी होगी क्योंकि आपकी करंट ज्यादा हो जाएगी, तो हीटिंग भी होगी, तो रिएक्टिव पावर इज नॉट एट ऑल, वी डोंट वांट रिएक्टिव पावर। बट अब रिमेंबर एक चीज कि फैक्ट्री में तो आप कुछ भी लगा के, जो पूरे प्लांट का पावर फैक्टर होता है, प्लांट के गेट पे या कंट्रोल सेंटर पे यू पुट अ कंट्रोल पैनल, अपने यहाँ पे भी जो सबस्टेशन है उसमें लगा हुआ है, तो यू एडजस्ट द कैपेसिटर रेटिंग ऑटोमेटिकली इन सच अ मैनर दैट डिपेंडिंग ऑन कि कितना रिएक्टिव पावर चाहिए, अगर आपने यहाँ कैपेसिटर भी लगा दिया तो क्या होगा, एक और करंट ऐसे आ जाएगी 90 डिग्री लीडिंग पे, फिर जब ये वाली करंट और ये वाली करंट का नेट निकालेंगे, तो जो नेट करंट रहेगी, ये देखिए ये वाली करंट आपकी लैगिंग थी ड्यू टू लोड, ठीक है, फाई एंगल पे लैगिंग थी, बट कैपेसिटर की वजह से कुछ करंट ऐसे आने लग गई। अब जो पूरी फैक्ट्री की करंट है, ये तो लोड के कारण थी, पूरी फैक्ट्री की जो करंट थी वो क्या होगी, वो इन दोनों के, आपका इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगी, लाइक दिस, इन दोनों का वेक्टर सम, ये वेक्टर और ये वेक्टर का सम ये आ गया यहाँ पे, तो मतलब आपकी जो नेट करंट है, दिस इज नेट या टोटल नेट करंट, कैपेसिटर और प्लस जोड़ के पूरी, मतलब जो एमपीबी से फैक्ट्री खींच रही है, कैपेसिटर लगाने से वो करंट इंप्रूव हो गई ना, उसका पावर फैक्टर अब क्या हो गया, वो वी से थोड़ा आगे पहुंच गया, तो हमें वी से आगे नहीं चाहिए, हम इसको थोड़ा और कम कर देंगे, हम इसको कम करेंगे कैपेसिटर को, कि ताकि बिल्कुल करंट यहीं पे करीब आ जाए। इज इट क्लियर, ये डायग्राम थोड़े अच्छे नहीं बन रहे हैं बट मैं आपके सामने बनाती जा रही हूँ, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं फिर से बताऊंगी यही चीज। यस मैम। आया, क्लियर हुआ, मीनिंग एक्चुअली व्हाट यू डू इज दैट यू एडजस्ट द कैपेसिटर, मीनिंग जैसे मैं यहाँ बताऊं आपको, देखिए ये आपका वोल्टेज है, एक बार फिर से बताऊंगी, संजय कुछ बोल नहीं रहा, संजय समझ में आया, मान लीजिए आपकी Yes, करंट यहाँ थी, है ना, यहाँ भी हो सकती थी करंट, और अगर पावर फैक्टर और पुअर है तो करंट और इधर रहेगी, ये और पुअर है, दिस इज I1 है, दिस इज I2 और भी बुरी हालत है। सो अब आप यहाँ पर एक कैपेसिटर इतना लगाएंगे, और कैपेसिटर की करंट, ये तो 90 डिग्री तो फिक्स रहेगा एंगल,
बट कैपेसिटर के मैग्नीट्यूड पे कैपेसिटर की करंट डिपेंड करेगी, ठीक है ये। तो अगर आप करंट इतनी भी लगा सकते हैं, आप करंट इतनी भी लगा सकते हैं, आप करंट इतनी भी लगा सकते हैं, है ना। IC, दिस इज कैपेसिटर करंट, दिस विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर। तो आप इतनी करंट लगाएंगे कि ये वाली करंट और ये वाली करंट का जो वेक्टर सम आएगा, ठीक है, वो करीब करीब यहीं पे आ जाए, इस जगह। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींचिए, यहाँ पे आ जाए। ये पूरा एक पैरेललोग्राम बनना चाहिए ऐसे, ये और तो नेट करंट जब इसका और इसका रिजल्टेंट I1 और IC का रिजल्टेंट यहाँ आ जाए, यहाँ इस जगह V के फेज में, तो पावर फैक्टर इस तरह से इंप्रूव होता है कैपेसिटर लगाने से। अगर ज्यादा लो पावर फैक्टर है, जैसे ये I2 है, तो आपको और ज्यादा IC, हायर वैल्यू ऑफ कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो दिस विल बी लेट अस से IC2। दूसरी कंडीशन ये IC1। अब इन दोनों को जब आप करेंगे तब आपकी ऐसे आएगी करंट कि ये यहाँ से था, ठीक है। बस ये ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैपेसिटिव करंट कितनी होनी चाहिए। कैपेसिटर की वैल्यू बढ़नी चाहिए। कैपेसिटर्स कैसे कहाँ लगाते हैं, वी कनेक्ट देम इन पैरेलल, so the net current should be in phase with this, so you can calculate and find out कि exactly कितना current होना चाहिए। तो ठीक है। अब anyway, going back here, what we wanted actually to discuss here is our aim here was to discuss that what happens, why mainly यहाँ पे we are talking about the converter control drives, okay। ये तो overall electricity board या power system का problem हो गया। So there were two things. Sanjay was talking about harmonics, okay। तो harmonics are also there, and reactive power, these are two different things. Both are related to power quality. When we talk of power quality, we want a voltage which is truly sinusoidal or truly DC, and we don't want any ripple, we don't want any ripple। DC के लिए होता है, harmonics AC के लिए। So there are no harmonics on the AC side, no harmonics are introduced, okay। So this is how, this is our target. Now in power electronics, because you are delaying or you are switching the devices on and off, you are using the device as a switch to control the AC or the DC, depending on क्या input है। अगर input AC है तो AC, otherwise DC। So you are using a switch actually to on off, on off, on off। You are doing on off type of control in chopper वगैरह, inverter, और या rectifier में you are delaying the conduction। So we are first talking about delay. In rectifier, we delay the flow of current, due to which the power factor becomes low, due to which there is a reactive power need which is created. The converter starts taking reactive power, the converter and motor system starts taking reactive power from the source, and due to that, the source quality is degraded and the source has to search for a capacitor, it has to use capacitor। अब ये unavoidable है, but can we do something in the converter? ये तो करना ही पड़ता है, कैपेसिटर लगा के पावर फैक्टर ठीक करते हैं, and that reactive power VI sin 5 जो थी, रिएक्टिव करंट जो थी 90 डिग्री जो नीचे की तरफ जा रही थी, IC जो है 90 डिग्री ऊपर है, तो बेसिकली वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं दोनों करंट, और इस तरह से आपकी करंट जो है वो बैलेंस होकर you get a good power factor, very low reactive power requirement, and therefore good performance, because reactive power is a negative thing, it's not a good thing। So it is unavoidable, you cannot do anything in converter, क्योंकि उसमें तो आपको डिले करना ही है, कंट्रोल ही उसी से है आपका। You have to delay the flow of current, वोल्टेज के बाद अल्फा तो उसमें आएगा ही आएगा फायरिंग एंगल। तो अब ये है कि ठीक है भाई, हमको तो ड्राइव को कंट्रोल करना है, और कन्वर्टर जो है वो इट्स अ वेरी गुड कंट्रोल, बिल्कुल मैनुअल कंट्रोल इतना अच्छा कंट्रोल तो दे नहीं पाएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर इज गिविंग यू बेस्ट कंट्रोल, so there is no problem, we will stay with the
कन्वर्टर कंट्रोल कन्वर्टर्स। लेकिन फिर अब क्या हम कन्वर्टर में कुछ कर सकते हैं? अपन आज का लेक्चर जो है वो इस पे है कि कैन वी डू समथिंग इन द कन्वर्टर। जैसे आपको मालूम ही है कि इन्वर्टर का परफॉर्मेंस अपन कैसे चेंज करते हैं, पीडब्ल्यूएम यूज करते हैं। ठीक है, अगर अपन एसी की बात कर रहे हैं कहीं पर भी, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एसी, ओके, so then instead of, if you take a AC, okay, if you take a AC which is like ऐसा वाला AC, जो स्क्वायर वेव होता है, ठीक है, this is also AC, and in PWM what do you do? Instead of taking one block like this, ये एक ब्लॉक था मान लीजिए, तो उसकी जगह what you do is that you create steps here like this. This is pulse width modulation, like this. So this wave is more clear to a AC as compared to this. ये तो obviously दिख रहा है कि ये वाला AC, ये डब्बा डब्बा वाला AC is not that efficient. ये वाला is more close to an AC. This is called pulse width modulation. This is very much like a AC wave. ये तो हमें मालूम, ये तो दिख ही रहा है, rather than एक हम ऐसा डब्बा बना देते ऐसा. This is square wave inverter and this is PWM inverter. तो similarly क्या हम रेक्टिफायर में भी कुछ ऐसा कर सकते हैं? जैसे इसमें हमने क्या किया था कि यहाँ पे स्विच को ऑन किया, यहाँ पे ऑफ किया, उसकी बजाय हमने बहुत बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है, स्विचेस को हमने इस तरीके से ऑन ऑफ किया कि वोल्टेज ऐसे स्टेप्स में आ गया आपके, ठीक है। तो ये तो जब हम इन्वर्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, बट दिस इज लाइक इन वन साइकिल सो मेनी टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स ऑफ वोल्टेजेस आर कमिंग, क्योंकि है तो डीसी टू एसी इन्वर्टर ना, तो एक बार ये वीडीसी का आधा आ गया, ये 2/3 वीडीसी आ गया और ये वीडीसी आ गया, इस तरीके से। तो similarly today we will study ki do we have any other method for improving the power factor of single and three phase drives, and if we have the methods then what are those methods, ठीक है, this we are going to study. The time left is only 4 minutes, but you be there, I will extend the session and we will complete this chapter. So I think the problem is clear that we want to improve the power factor of a converter controlled drive system. तो हाउ कैन वी डू दैट? वी कैनॉट, ये हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि वी कैनॉट कंट्रोल अल्फा, बिकॉज फिर तो पावर फैक्टर चेंज करना, अगर इंप्रूव करना है तो आप बोलोगे कि अल्फा कम कर दो, बट वी वांट टू कंट्रोल द स्पीड आल्सो. इफ यू हैव टू रिड्यूस द स्पीड तो अल्फा हैज टू बी इंक्रीज. इफ यू डोंट हैव टू रिड्यूस द स्पीड तो हाई स्पीड पे ड्राइव का पावर फैक्टर बेटर रहेगा. तो व्हाट कैन बी डन? सो देयर आर टू मेथड्स. ये सब मैं डिलीट कर दूंगी, दिस इज ऑल जस्ट for your previous revision kind of thing. We start from here. So power factor improvement in converter, ठीक है, there are two methods. The first method is, ये 3 phase और single phase दोनों के लिए होता है. Single phase bridge converter में भी कर सकते हैं, 3 phase में भी कर सकते हैं, same philosophy. And what is the method called? It is called freewheeling diode, and another one is controlled freewheeling. There are two techniques, okay. एक तो है freewheeling diode और ये है freewheeling diode, आप देख रहे हैं. This is first method, and second is controlled freewheeling on the next slide. So these are two methods which we are going to discuss today. अब इस कन्वर्टर में पहली बात है कि अपन ने सोच लिया ना कि अल्फा पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो अब बात आती है कि पावर फैक्टर फिर क्यों भाई, इसका क्या कर सकते हैं? तो आप ये देखिए, ये दो मेथड हैं, एक कंट्रोल्ड फ्लाईव्हीलिंग है, एक एफडी है, जो ये डायग्राम बना हुआ है, इससे पावर फैक्टर इंप्रूव होता है. दूसरा है कंट्रोल्ड फ्रीव्हीलिंग.
ठीक है, कंट्रोल्ड फ्री व्हीलिंग, इसमें डायोड नहीं होता है, ठीक है, फ्री व्हीलिंग, कंट्रोल्ड फ्री व्हीलिंग आप लोग नोट करो। So now what is the difference between the two? So you can see that when regenerative braking is not required, a freewheeling diode can be added to the fully controlled rectifier, giving this type of circuit. If you add the freewheeling diode, then it becomes a single quadrant converter and no regeneration is possible. No braking, no regenerative braking, no regeneration. ठीक है, clear? No regeneration. If there is a diode. So there are two techniques. One is with diode and the another technique is where we don't use a diode and we do controlled flywheeling. ये वाला जो मैंने बताया. तो पहली बात समझ लीजिए कि for power factor improvement in converters, here we are going to study two techniques. First is with flywheel diode and second is with control flywheel. अब पहली बात आती है कि flywheeling diode कब यूज करेंगे? When no regenerative braking is required. मैं एक स्लाइड ऐड कर दूंगी आपके लिए, मैंने बनाई नहीं है, स्लाइड टू बी एडेड. So when no flywheeling diode, दोनों मेथड को अपन कंपेयर कर सकते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, चलिए, है ना. एक मिनट, ये पहली टेक्निक ये थी, स्लाइड आगे पीछे हो गई है. पहले आई विल डिस्कस द ऑपरेशन विथ कंट्रोल फ्लाईव्हील. ठीक है, तो पहली बात है कि पावर फैक्टर कम क्यों होता है. तो देखिए, इन सिंगल एंड थ्री फेज रेक्टिफायर्स द कंट्रोल फ्लाईव्हीलिंग इज इम्प्लीमेंटेड for eliminating negative excursions of the output voltage in rectification and positive excursions during the inversion. क्योंकि due to negative excursion, the power factor and the harmonic या ripple content becomes more. तो हमारे लिए अच्छा ये है कि कोई नेगेटिव पार्ट वोल्टेज का ना आए. दोनों मेथड हम नेगेटिव को हटाने के लिए करेंगे. फ्लाईव्हील डायोड से नेगेटिव पार्ट कैसे हटता है आपको मालूम है. वी हैव डन इट एट डिटेल इन सिंगल फेज रेक्टिफायर. सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा कि फ्लाईव्हील डायोड जो है वो करंट को तो कंटिन्यूस कर देगा, लेकिन वोल्टेज की नेगेटिव पार्ट को कट कर देगा. नेगेटिव आएगा ही नहीं. यू नो दिस.